Good evening to everyone, and thank you so much for joining the launch event of the Gender Samvad. The Gender Samvad is a joint attempt between DAY NRLM and iWage to create a common platform for generating greater awareness on NRLM's gender interventions across the country. There will be an emphasis on hearing voices from the states and the field. We hope to organize this as a bi-monthly webinar where we hope that the Samvad will provide states with opportunities to understand best practices that they have been undertaking to improve women's agencies around FNHW, around financial inclusion and livelihoods. It will also give them an opportunity to understand gender interventions globally and engage with experts and other colleagues on how to handle gender-related issues and implementation barriers. Eventually, we hope that it will also lead to the creation of a gender repository with resource materials on best practices for gender interventions across the country. We hope to invite to this dialogue the NRLM's senior officials, representatives from civil society, academia, even multilateral institutions, and international experts who have been working on the field of women's economic empowerment and have been implementing similar empowerment programs around the world. With this, I would like to call the Joint Secretary, Ms. Neeta Kejriwal, to give her opening remarks. Thank you, Soumya. And I would like to welcome everyone to this Gender Samvad. Respected Shri Nagendra Sinha, Secretary Rural Development, Srimati Alka Upadhyay, Additional Secretary Rural Development, and all my colleagues from the National Mission Management Unit of MORD, as well as iWage, and all the colleagues who have joined from the states, the esteemed panelists, and also the SAG women who have also joined and whom we are expecting will be sharing some of their stories. So I welcome you all to the launch of the Gender Samvad, which is being launched as a part of Government of India's ongoing Amrit Mahotsav. Under the Deen Dayal Upadhyay National Rural Livelihood Mission, which is a very unique flagship anti-poverty scheme of Ministry of Rural Development, the unique feature of this scheme is the empowerment of women and the social capital that it has managed to create, especially in the form of community resource persons who have in a way become the mainstay of this mission. The mission is currently working in more than 6,400 blocks, has been able to mobilize more than 75 million rural households into over 69 lakh self-help groups. So this is the kind of reach that the mission has, and this is the kind of numbers of women who have been mobilized and who have come out of their houses, who have been engaged in different kinds of activities. And now the mission is also particularly trying to focus on gender-related interventions to further ensure empowerment of these women. So the gender interventions under NRLM have been initiated since 2017, and there has been a two-pronged kind of strategy. The first part is to build the capacity of all the mission staff and cadres to be able to be sensitized towards gender issues first, and also to be able to address gender-related issues of women in the rural areas. And the second thing is to try to create some models for institutional mechanism for addressing gender-related issues. So in terms of trainings, etc., more than 1,500 state and district level officials, more than 7,000 block level officials, and more than 18,000 social action committee members, and over 3,500 gender point persons have been trained, all on the basic concepts of gender, and that also includes some of the major provisions that are there in the law to protect the rights of women. In this area, to move ahead, we have NRLM has partnered with Initiative for What Works to Advance Women and Girls in the Economy, that is iWage. And together we have initiated a gender pilot called Swayam. This gender pilot Swayam is being implemented right now in 4 states, Orissa, MP, Chhattisgarh, and Jharkhand. The aim of this pilot is to ground institutional mechanisms
like gender resource centers, etc., in collaboration with the state rural livelihood missions, and also to assess the effectiveness of such institutional mechanisms in addressing women's grievances and also in supporting them to access their entitlements. So these are in the nature of pilots in these states, customized to the requirements of these states, and then learning from their experiences, it is hoped that we'll be able to take it forward to other states in the country also. So far under Swayam, nearly 3,500 community resource persons and over 17,000 SAG women and more than 100 VOs have been trained. And over 11 gender resource centers have been made operational across 3 states. So now we are launching this Gender Samvad today because we now wish to bring all the learnings and all the awareness about the activities in relation to gender under NRLM onto one platform, so that this becomes a platform for generating further awareness on gender related issues amongst the staff of NRLM. It becomes a learning platform for all SRLMs. And as Soumya just mentioned, it also we hope it will become a kind of a gender repository with all this knowledge placed on this platform. And lastly, we would also hope to be able to build advocacy around the need to focus on gender issues across SRLMs and NRLMs, across all the verticals of this mission. We are looking forward to an engaging discussion today, and wish the team all the very best. So to start our program for today, I will request the IWICH team to play a short 2-minute film on our gender interventions. Thank you very much. बिहार 2013 से फंक्शनल हुआ था और 16 से इसका जो क्रियान्वयन है, हम लोग इसको पूरे फुल फ्लेज्ड मोड में हम लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में अभी हमारे पूरे सभी समस्त जितने 28 ज़िले हैं वो कवर हो चुके हैं। आज के डेट में हमारे साथ में करीब 1,90,000 हमारे स्व सहायता समूह से ज़्यादा भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम 2 स्तर पर हम जेंडर इंटरवेंशन का कार्य कर रहे हैं। एक तो जो हमारी NRLM की जो सामान्य गतिविधियां हैं, जो आजीविका की गतिविधियां हैं या सोशल मोबिलाइजेशन की गतिविधियां हैं, हम जेंडर को उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें अभी थर्ड जेंडर के भी कामों को उसमें हम लोग अभी इंक्लूड करने का प्लान कर रहे हैं। इस पे अभी हम लोगों की चर्चा अभी थर्ड जेंडर कम्युनिटी के साथ में भी अभी हुई है। एक दीदी थी जिनके देवर हमेशा उन्हें प्रताड़ित करती थी शराब पीकर। वो दीदी हमेशा दुखी रहती थी और वो दीदी GPP मेंबर के द्वारा अपना दुख हमारे पास बताई। लेकिन ग्राम संगठन के बाद हम लोगों ने सखी मंच तैयार किया। हमारे हक में क्या आता है, जगह, जमीन, क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड, ये सब मालूम नहीं था।
फिर प्रशिक्षण के दौरान ये सारी बातें जैसे मालूम हुई, तो डायरेक्ट में तो जाके अपने पतियों से बोलेंगे, ससुर सास से बोलेंगे तो वो कर नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे समझाना, उनको समझाया गया। Thank you so much, Neeta ma'am. Usha ji, is the AS joining? I've already joined. Am I audible? Okay, ma'am. I think we just needed to rename you, so I'll just do that. Yes, you're very audible, ma'am. Ma'am, I would like you to request to give your remarks. Thank you very much. And I welcome Secretary Sir for giving his time to this rather interesting forum that we have created for gender sensitization. Sir, this is the first of its kind that we have as of today. And as you can see, sir, roughly 1,200 women have already, or participants have already joined. For better understanding purposes, I will take my conversation off in Hindi from now on. मैं सभी को बहुत आईवेज को बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने कि इस बहुत ही अनूठे कार्यक्रम का आज आयोजन किया है। सर, हम लोग की कोशिश ये रहती है और रही है NRLM की कि हम किस प्रकार से देश के हर गांव में अपनी मौजूदगी दिखाएं, और हम ये अपनी महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम है उसमें जेंडर एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा अंश है, और इनफैक्ट सबसे बड़ा अंश हमारा यही है, जिसमें कि हम लोग ये कह रहे हैं कि महिलाओं को सबसे पहले सशक्तिकरण और एक आत्मविश्वास सिखाने की सबसे पहली जरूरत है। उसी क्रम में सर जो SHGs का हम लोग का एक कार्यक्रम है जिसमें कि महिलाओं को एक मंथली मीटिंग या पाक्षिक बैठक की बात बताई जाती है, एनुअल बुक कीपिंग की बात बताई जाती है, वो इस सब की प्रक्रिया है और एक ये तरीका है कि किस प्रकार से हमारी महिलाओं को आवाज मिल सके। सबसे पहली चीज तो है कि हमारी महिलाओं को आवाज मिल सके, बाहर जाके वो अपनी बात कर सके। आप अवेयर ही होंगे सब लोग कि गांव की परिस्थिति में महिलाएं अपने घर से बाहर निकल सके, अपने बात को रख सके, अपने हक की बात कर सके, ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को दूर करने के लिए काफी हद तक NRLM का ये कार्यक्रम सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन अब जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमको कुछ और भी ठोस कदम आगे उठाने होंगे, और उन जो ठोस कदम हम उठा रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ये जो हर 2 महीने में हम जेंडर संवाद का एक कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, वो इसी क्रम में है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा कार्यक्रम है, ये बात मुझे लास्ट में कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं इससे इतना प्रेरित हुई हूँ, मुझे लगता है कि हमको ये जेंडर संवाद का कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि हमारी पहुंच बहुत अच्छी होगी। और इस रेडियो प्रोग्राम में हम हर बार एक किसी न किसी ऐसी हस्ती को सामने लेकर जाएं जिन्होंने कि महिलाओं के उत्थान में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया हो। ये मैं आखिरी में बताना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ पर ही ये बात कह देना बहुत प्रासंगिक होगा। हम लोगों ने सर जो बहुत सारे कदम उठाए हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि ना केवल महिलाएं आज की तारीख में काफी सक्षम हो रही हैं, परंतु वे आगे बढ़कर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए तत्पर हैं। और एक हमारी छोटी इंटरवेंशन के साथ में, बहुत छोटे इंटरवेंशन के साथ में ये महिलाएं आज बहुत कुछ करने को तैयार हैं। विभिन्न आयाम हमने देखे हैं कार्यक्रम के, और उस पूरे आयाम में हम लोगों ने ये देखा है कि जितने भी हमारे महिलाएं हैं वो हर आयाम में, हर किसी एक परीक्षा में बहुत अग्रणी रही हैं और बहुत अच्छे उन्होंने रिजल्ट्स भी दिए हैं। चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन का कार्यक्रम हो, जिसमें जिस तरह से सर हम देखते हैं, हम लोगों ने छोटा सा ही स्टडी कराया था, लेकिन ये देखा
कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से पैसा आ रहा है वो पैसा ज्यादा करके डेयरी और पोल्ट्री और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है। अब दूसरा हमारा इसमें एक ये भी बात रही है कि हम लोग ये जो जो भी हमारा एंटरप्राइज का कार्यक्रम है या आज इकोनॉमिक गतिविधियों का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी हम लोग काफी सक्सेसफुल हुए। सरस मेले हमारे एक आईना है या एक खिड़की है जो बताते हैं कि किस तरीके से महिलाएं आज अपनी बात को, अपने एंटरप्राइजेस को लेकर सीरियस है। तीसरा आयाम जो एक स्किलिंग का है, एक बहुत अच्छा हम लोग के सामने बात आई और उस दिशा में हमको कार्य करना होगा। हम लोग जितना स्किलिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, जबकि यद्यपि हम देखते हैं कि उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी है स्किलिंग प्रोग्राम में, लेकिन ये देखा जाता है कि जब जॉब एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो महिलाएं थोड़ा पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उनको किसी ना किसी तरह से एक भ्रांति उनके दिमाग में है कि कैसे बाहर जाएंगे। उनकी सुरक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है इसमें निर्णय लेने के लिए। तत्पश्चात जो महिलाएं बाहर जा भी रही हैं वो उनका भी ये देखा गया, उड़ीसा में एक स्टडी की थी ईपॉट के माध्यम से, उसमें ये भी देखा गया कि 3 महीने के बाद में या 6 महीने के बाद में रिटेंशन बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये हम लोगों को अपनी जो हम कार्यवाहियां कर रहे हैं, स्किलिंग की कार्यवाहियां कर रहे हैं, वो हमें रोकनी नहीं है, क्योंकि विभिन्न महिलाओं से जब भी मैंने भी बात की है तो मैंने ये देखा कि हमारी जो महिलाएं हैं एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाती हैं तो कुछ नहीं तो कहती हैं। हमको कितनी लड़कियों ने कहा कि ये हमारी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था जब हम ट्रेनिंग सेंटर में थे। तो दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाइजीन के बारे में हम लोग आजकल जो FNHW के माध्यम से महिलाओं को बता रहे हैं, उनको कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिशनल सफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, हाइजीन लेवल्स क्या होने चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। काफी अवेयरनेस हो रही है। लेकिन सर इसको हमको और आगे बढ़ाना होगा, हमारी दीदियों को और अभी बहुत आगे जाना है। वर्तमान परिस्थिति में हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, स्पेशली ये कोरोना काल में, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। हमको हिदायत पूरी लेनी है, हमको पूरी तरीके से अपने आप को मजबूत रखना है। लेकिन कई चीजें हैं जो कि अब हम लोग को लगता है हमें प्रायोरिटी पे लेना होगा। मैं ग्राम संवाद के माध्यम से सभी को अपील करना चाहूंगी कि भले ही ये राशि छोटी हो या 350 रुपए की राशि हो, हमारी 2 बीमा योजनाएं हैं महिलाओं की, एक 12 रुपए की, एक 350 रुपए की, लेकिन इंश्योरेंस के क्षेत्र में आज हमको बहुत आगे जाना है। सोशल सिक्योरिटी का इंश्योरेंस से बड़ा और कोई टूल नहीं हो सकता है। तो जितने पार्टनर्स आज हमारे पास में यहाँ पे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि हम आगे बढ़ें और इस इंश्योरेंस कवरेज को आगे बढ़ाएं। भले ही हमारे पास में आज 8 करोड़ महिलाएं हैं जो कि स्वयं सहायता समूह की मेंबर्स हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो केवल 1.76 या 1.80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख महिलाएं जो हैं वो इंश्योर्ड हैं अभी। हमको इसमें बहुत आगे बढ़ना है। ये एक एंटाइटलमेंट की बात है, इंश्योरेंस आज की तारीख में एंटाइटलमेंट है। स्वास्थ्य सेवाएं जिस प्रकार से एक एंटाइटलमेंट हो गया नेशनल हेल्थ एक्ट के बाद में, जो हमारे वेलनेस केंद्र हैं, जो कदम उठाए गए नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एक हक हो गया कि हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएंगे, उसी तरीके से हमको इंश्योरेंस की तरफ भी आज आगे बढ़ना होगा। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो हुआ है जेंडर रिसोर्स सेंटर्स का, जो हम लोगों ने स्थापित करे हैं। और ये जो जेंडर रिसोर्स सेंटर्स स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं को एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं, वहां पर महिलाओं को ना केवल ये बताया जा रहा है कि आपका एंटाइटलमेंट क्या है, परंतु अब धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि लोग आगे आकर अपनी समस्याओं को, अपने हक के बारे में बात करने लगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण एक आदिवासी जिले मध्य प्रदेश का आया, जिसमें कि वो वहां की ट्राइबल महिलाएं आज अपने नाम पर भूमि पर अपना नाम दर्ज कराना चाहती हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि महिलाएं अपने हक को समझें, अपनी बात को समझें और उस एंटाइटलमेंट को के लिए जरूर अपना विचार आगे रखें। ग्राम संवाद का एक और पड़ाव है सर, जो कि आगे चल के हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुडुम श्री ने वो न्यास रखी है या फाउंडेशन ले करा हुआ है कि हमारी महिलाओं को ना केवल आपस में समूहों में भागीदारी निभानी है,
परंतु आगे चल के पंचायतों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। जब पंचायतों में हमारी भागीदारी दो तरीके से होगी, एक तो पंचायत जब ग्राम सभा की बैठक होती है, उस ग्राम सभा की बैठक में हम लोग जाकर ये बात कहें कि हमारा ये डिमांड है, हमारे गांव में ये होना चाहिए, लाइवलीहुड के लिए हमें इस बात की जरूरत है। और दूसरे स्तर पर हम लोगों को पंचायत का की जो आज की तारीख में 30% सीट्स जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है, हमको कोशिश करना चाहिए कि उन सीटों पे हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कॉन्टेस्ट करें। इनफैक्ट कई जगहों में ये संख्या जो महिलाओं का रिजर्वेशन 30% उससे कहीं ज्यादा बढ़ के आज की तारीख में हो गया। केरला एक ऐसा एग्जाम्पल है, लेकिन और प्रदेशों में भी इसमें हमको आगे बढ़ना होगा। तो जेंडर संवाद हमारा इसीलिए हम लोगों ने इसको स्थापित किया है, जिससे कि हम इस आगामी 1 वर्ष में महिलाओं को उनके हक के बारे में बता सकें, क्या क्या उपलब्धियां। आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमको जनधन का खाता खोलना है, जबकि बहुत सारे इसमें कार्रवाई हुई थी 2014-15 में, लेकिन फिर भी ये निकल कर आया कि बहुत सारी महिलाओं के जनधन के खाते नहीं है। यदि उनके जनधन के खाते होते तो जो अभी पिछले साल कोरोना काल में प्रत्येक महिला को 1 महीने में 500 रुपए दिया गया, तो उनको भी इस बात की बेनिफिट होता। तो हर महिला का खाता हो, हर महिला का इंश्योरेंस हो, उनके बच्चे पढ़ने जाएं, उनके बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कॉलरशिप मिले, उनको स्वास्थ्य सुविधा जो मिलनी चाहिए वो स्वास्थ्य सुविधा मिले। और उसके साथ साथ में उनका, जैसे ग्रामीण विकास विभाग ने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं, उसका बड़ा अच्छा नतीजा भी निकला है। जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उसमें हम लोग देखते हैं कि ओनरशिप हम लोगों ने कहा कि या तो महिला के नाम पर होगी या फिर महिला और पति के नाम पे संयुक्त साझेदारी होगी। आज हम देखते हैं करीब 67% महिलाओं की आवास में नाम है। ये अपने आप में बहुत एम्पावरिंग है, क्योंकि सब लोग को ये मालूम है कि गांव में जब बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि महिलाओं के नाम पे घर नहीं है, तो घर वाले कई बारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कई बार कि उसको घर से निकाल देते हैं। आज जब उसके नाम पे घर है तो एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी उसके हाथ में हो गई है। तो मनरेगा में हम लोग देख रहे हैं कि आज 55 से 60%, 55-57% महिलाएं आज काम कर रही है, उनकी भागीदारी है। तो प्रयास और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ऑफ कोर्स एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि हम लोग सिर्फ महिलाओं के लिए ही बात करते हैं, महिलाओं के विकास पर ही चर्चा करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आगे भी निरंतर हमको करना है। आपको स्वयं अपनी आवाज उठानी होगी, आपको स्वयं संगठित होना होगा, अपने को इकोनॉमिकली या वित्तीय रूप से अपने आप को थोड़ा मजबूत करना होगा। जब वित्तीय सुरक्षा आती है, उसके साथ साथ में बहुत ज्यादा सामाजिक सुरक्षा भी हमको प्राप्त होती है। तो दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची हैं, सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए और उसके साथ साथ में वित्तीय सुरक्षा भी चाहिए। NRLM के सभी ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही हैं, उनका आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। हमारे जो पार्टनर्स यहाँ पर हैं, सब मिलकर हमारी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम करें और हम निरंतर अपनी बातों को साझा करते रहें, बार बार कहते रहें। जैसे पोलियो का एक कैंपेन था जिसमें कहा गया 2 बूंद दवाई, और अब आजकल हम लोग कहते हैं कि 2 मीटर की दूरी और सुरक्षा है जरूरी, मास्क पहने। हम ये बातें कह रहे हैं, आप लोगों का यहाँ पे कहना बहुत प्रासंगिक है कि पिछले बार और अब की बार फिर से गांव-गांव में मैसेज कोरोना से कैसे हम लोग बचें, वो मैसेज आपके माध्यम से ही गांव में गया। आप हमारे सूचना वाहक थे, आपने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही मेरे ख्याल में और किसी कार्यक्रम में इतना डीप पेनिट्रेशन नहीं हुआ जितना कि NRLM के माध्यम से हुआ। तो ये बहुत सारी बातें हैं, मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर हम और भी ऐसी जब श्रृंखला में बातचीत करेंगे तो बहुत सारी और बातें हमारे सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, ma'am. Ma'am, with your permission, there were some queries around just translating in English because there are many northeastern states. So if I could just translate very briefly the points that you said. Yeah, sure. Or even I could repeat them. I mean, I can just go 1, 2, 3, 4. So, so friends, all that I have said, I mean, I can just summarize it that NRLM
is the kind of penetration that an RLM has in the rural areas is unparalleled. There is a very huge and big, strong rural community connect through this program. I urge you all to utilize this community connect to not only find your voice, but also to ask for what you deserve and ask for your entitlements. So you all are aware there are a number of numerous entitlements that have come forth, which you should be aware of. Health is one of them. Getting yourself insured in current times is of prime importance, because unless and until, because of the corona times, this social security is a must. Number three, we need to be very, very sure about the health and nutritional values, the hygiene issues. We need to talk about that. We need to focus on our livelihoods, because all said and done, it's the financial literacy or financial strength that we have that comes in very handy in also ushering in social security. There are cases where we have seen that although we are skilling women, they are not able to move out of their houses to accept jobs. We need to create that social network. We need to ensure these girls that they are safe and create a community connect through the migration support systems to ensure that women who have been trained are able to go out fearlessly to accept the jobs. The grievance redressal committees, the gender resource cells that have been set up in the villages are acting as forums where women can go and talk about their grievances or talk about their problems. Because they do not normally know where to go and talk about their issues, whether it be abuse by physical abuse by the husband, or is it financial abuse by the family, or whatever, or land related issues or livelihood related issues. They don't know where to go. So these gender resource centers are now working, and they are kind of giving a lot of advantage to these women, and you in your area should also utilize them. So I have summarized all the main points that I had spoken about. Thank you. Thank you so much, ma'am, for a very inspiring speech. Ma'am, with your permission, we'd just like to launch the webpage that we have created, which will serve as a repository for everybody on the field. May we do so, ma'am? We should ask Secretary, sir, if we have his permission, we can launch that webpage, sir. Sure, sir. And I would also like to request, sir, if you could also launch the compendium of case studies that has been produced, which just captures very inspiring stories of SHG women from the field. So over to you, sir. Thank you. I'm trying to take the compendium out of cover and then I hope people can see. We can see, sir. We can see it. So thank you very much for bringing out this wonderful publication, which lists the different kind of issues which the women faced, and through their collective action, they were able to overcome them, the bias and the discrimination against them. So it's really a wonderful collection, and I hope we are also in a position to take out multilingual translation of these compendia, so that people from all sections, including those who are staying in their own areas and are not conversant with English as a media, they are also able to access these books, these compendia, and able to understand as to how women in other communities were able to
address those challenges. So thank you very much. Would you like? Soumya, please go ahead. Sure. So we've also created a web page where we would be housing all of these materials. With your permission, can we just launch the web page as well? Please go ahead. Okay. Thank you, sir. So sir, this is the web page. आप सभी बहनों को और जो हमारे साथ जुड़ी हैं, ये एक वेब पेज हमने क्रिएट किया है. We have created this web page which will house all the materials of the Gender संवाद. जो भी जेंडर संवाद में चर्चा होगी, डायलॉग्स होंगे, उन सबको यहाँ पर शोकेस किया जाएगा, यहाँ पे दिखाया जाएगा. ये वेब पेज इंग्लिश और हिंदी में भी होगा और ये NRLM की वेबसाइट से जोड़ा जाएगा. इस वेब पेज पे इन सारी मटेरियल्स और जो केस स्टडीज हैं, जैसे सर ने बताया, हम प्रयास करेंगे कि हम इसे हिंदी और अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेट करें और दिखाएं. और हर जो जेंडर संवाद का इशू होगा उसके वीडियोस यहाँ पे रखे जाएंगे ताकि आप उन्हें बार बार सुन सकें और उनसे जो है कुछ आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चलें. जो इवेंट्स आने वाली हैं, जो आगे जेंडर संवाद के एडिशंस होंगे, उनको यहाँ पर जो है दिखाया जाएगा ताकि आप रजिस्टर कर सकें और फिर उसे ज्वाइन कर सकें. इसके अलावा हर जेंडर संवाद एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर होगा, एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर होगा, जैसे कि लैंड, जेंडर एंड लैंड, जैसे अलका मैम ने बताया फाइनेंशियल इंक्लूजन, जेंडर एंड स्किलिंग. और उस इशू, उस मुद्दे के ऊपर जो है एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, उन पे चर्चा होगी और स्टेट से भी बहनों को बुलाया जाएगा, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाएगा ताकि हम देख सकें कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं इन मुद्दों को आगे बढ़ाने में फील्ड में. Over a period of time, we also want to enable a chat option. यहाँ पर एक chat option ऐड किया जाएगा ताकि आप जैसे जैसे आपकी क्वेरीज हो कि इस इशू को कैसे देखा जा सकता है, कैसे इसे डील किया जा सकता है, वो डालें और IWEAJ और IBCB टीम मिलकर प्रयास करेगा कि हम उन क्वेश्चंस का हम जल्दी से जल्दी उत्तर दे सकें. So with this, I would request you to please give your keynote address. Thank you, sir. धन्यवाद. आप हमारी मंत्रालय में अपर सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय जी, संयुक्त सचिव श्रीमती नीता केजरीवाल जी, IWEAJ की प्रमुख सुश्री सौम्या कपूर जी, जितने भी इस जेंडर संवाद में लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज उपस्थित हैं, सभी बहनों को मेरा नमस्कार. सबसे पहले मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि जो कोविड की बीमारी है उसका उसकी लहर सी चल पड़ी है और देश में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं. तो इस नाते सबसे ज़रूरी है कि हम वो सभी सावधानियां बरतें जिसके माध्यम से हम इस बीमारी से बच सकते हैं. हम किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, मास्क पहने रहें, जो लोग वैक्सीनेशन के पात्र हैं, एलिजिबल हैं, वो वैक्सीनेशन कराएं और इस तरह का किसी भी प्रकार का शक होने पे हम तुरंत अस्पतालों में ले जाएं और चिकित्सा प्राप्त करें. कई प्रकार की देसी चिकित्साएं भी उपलब्ध हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे उसके साथ ये जरूरी होगा कि आप जो अभी अस्पताल में इसकी जो चिकित्सा मिल सकती है वो करें, होम कन्फाइनमेंट करें, दूसरे लोगों को संपर्क में आने ना दें और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल जाएं और ऑक्सीजन या बाकी जो भी प्रकार की सहायता उसको अवश्य प्राप्त करें. मैं इस अवसर पे सभी राज्यों को, जितने पैनलिस्ट आज चर्चाओं में बोलेंगे और सभी स्वयं सहायता समूह की बहनों को जेंडर संवाद के लॉन्च के अवसर पर शुभकामनाएं भी देता हूं. ये
प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके माध्यम से जो लिंग भेद के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हमारे समाज में ये काफ़ी पहले से हैं, तो उनका हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, उस पर साथ मिलके हम चर्चा कर सकते हैं। दूसरी बहनों ने क्या किया है उसको समझ सकते हैं और उसके माध्यम से फिर हम अपना आगे का एजेंडा भी तय कर सकते हैं। और जैसा बताया गया कि आप अपनी जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको भी जेंडर संवाद के प्लेटफॉर्म पे आप डाल सकते हैं, जिसका वो उत्तर देने की कोशिश करें। ये कार्यक्रम हमारी जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है उससे जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है और इसका नाम अमृत महोत्सव रखा गया है। और अमृत, आप जैसा कि जानते हैं, जो भी लोग, जितने भी बहन और भाई आज यहाँ उपस्थित हैं, परिचित हैं भारतीय संस्कृति से, तो वो जुड़ा हुआ है जब समुद्र मंथन करके अमृत निकाला गया था। तो एक तरफ वहाँ पर दानव थे, दूसरी तरफ देवता थे और दोनों ने मिल के मथा और उसके माध्यम से अमृत पैदा हुआ। आज हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से इसी प्रकार का अमृत निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर एक और आपकी सामूहिक शक्ति है, ये कार्यक्रम है, और आपके समर्थक और आपके शुभचिंतक हैं, और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की जो समाज में जटिलताएं हैं वो हैं। आपकी पढ़ाई की कमी है, आपके पास जमीन और संपत्तियां नहीं है, स्वास्थ्य विषयक समस्याएं हैं, आपको जिन जानकारी की कमी है, समाज के बंधन और रूढ़ियां हैं। तो इन सब के बीच में मंथन करके हम अमृत निकालेंगे जो हमें एक समानता की ओर ले जाएगा, और जिसके माध्यम से जो हमारे देश की, और मैं समझता हूँ कि चूंकि हम पूरे विश्व की आबादी का 1/5वां हिस्सा लगभग है, तो पूरे दुनिया की में वृद्धि के लिए, समानता के लिए एक नई मिसाल पैदा करेंगे। आज मैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पढ़ रहा था और यहाँ पर दो चीजें मैंने पढ़ी और वो मुझे बात बड़ी खटकी। एक तो ये है कि अगर पुरुषों और महिलाओं में समानता रहती तो लगभग 12 ट्रिलियन का जो इसके समानता न होने के चलते नुकसान हो रहा है, वो नुकसान शायद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नहीं होता। अगर 12 ट्रिलियन डॉलर को आप समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा अमाउंट है जो तुरंत ये बताना शायद संभव नहीं हो, बट इसको आप अगर देखें तो 100 लाख करोड़ अगर आप कुछ समझ सकते हैं, तो ये इतने रुपए की राशि के बराबर है, काफी बड़ी राशि है। दूसरा, ये तो बात है कि कितनी अभी लॉस हो रही है, पर अगर पुरुष और महिलाओं के बीच समानता होती तो शायद दोनों के साथ मिलकर काम करने से और भी ज्यादा राशि और अर्थव्यवस्था को लाभ होता। दूसरा जो आंकड़ा मैं पढ़ रहा था वो ये था कि जो पुरुषों और महिलाओं के बीच में भेद है, उस भेद को पाटने में आज की स्थिति से, आज की गति से हमें करीब 200 वर्ष लगेंगे, जिन देशों में ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। तो काफ़ी इसका मतलब कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा लक्ष्य है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से और आज जैसे प्रयासों के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि इस गति को और ज़्यादा एक्सेलरेट किया जाए और तीव्र किया जाए, और हम दोनों के बीच का जो अंतर है, जो खाई है, उसको जल्दी पाट सकें। हमारे देश में काफ़ी प्रयास हुए हैं। संविधान औरतों और पुरुषों के बीच में भेद को नहीं मानता है, और अगर आप उसके प्रावधान पढ़ें तो दोनों के बीच में समानता
ही उसका ध्येय है, उसका उद्देश्य है। पर क्या ये वास्तव में समानता आज हो पाई? आज भी एक आंकड़ा है कि हमारे 75% जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो खेती के काम में जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप जमीन उनके नाम देखिएगा तो मात्र 13% महिलाओं के नाम ही जमीन है। महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो खेती करते हैं, तो अब विभिन्न प्रकार के जो खेती से जुड़े काम हैं उनके बीच में अगर मजदूरी की दर में को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों की मजदूरी दरों में काफ़ी फर्क है। और ये बात हमने इसी सप्ताह जो नीति आयोग ने फूड सिस्टम्स पे एक वर्कशॉप किया था उसमें सुना। हमने उनसे ये कहा कि हमारा कार्यक्रम भेद नहीं करता है, पर उन्होंने ये बताया कि आपके कार्यक्रम भले भेद न हो, पर जो कृषि है ग्रामीण क्षेत्रों में उसमें दोनों के मजदूरी दरों में काफ़ी फर्क है। एक अध्ययन अभी हाल में ये किया गया था और ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, और उन्होंने ये देखा कि जो घर में काम होते हैं उसमें कौन ज़्यादा समय व्यतीत करता है। तो ये पाया गया कि महिलाएं लगभग 5 घंटे व्यतीत करती हैं, जबकि पुरुष करीब करीब 1.5 घंटा टाइम ही व्यतीत करते हैं। फिर भी अगर दोनों के मूल्य निकालें और दोनों का महत्व दें तो कई संस्थाएं आज भी नहीं मानती हैं कि जो डोमेस्टिक वर्क है, घर का जो काम है, उसकी कोई खास महत्ता है। और इंश्योरेंस जैसे कई मामलों में उसका उतना मूल्य नहीं दिया जाता। इस बात पर हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। जस्टिस रामना जो अब मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, उन्होंने सभी लोगों को इस बात का याद दिलाई कि महिलाओं का जो घर में काम है उसकी अपने ऑफिस जाने वाले या घर के बाहर काम करने वाले पुरुषों से कम महत्ता नहीं। एक बात अभी हाल में और भी जो देखने को आई है वो ये है कि जो हमारी बहनें हैं उनका वर्कफोर्स से, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उससे निरंतर उसमें कमी आती जा रही है। वो पिछले 2004-05 से 2017-18 के बीच में एक अध्ययन किया गया है, तो उसमें ये पाया गया कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका जो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन है, भागीदारी, उसमें हर साल लगभग 3% की कमी आती जा रही है। ये जो अध्ययन का समय था, जबकि पुरुषों की भागीदारी लगभग 1% की दर से बढ़ रही थी। और ये अगर आप दूसरे देशों में देखिएगा तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें उनका हिस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। भारत में ये 18% है, जबकि चीन अगर देखिएगा तो 41% है, वियतनाम में 40% है, श्रीलंका में भी 30% है। और अगर हमारे महिलाओं की भी काम में उतनी ही भागीदारी रहती जैसे पुरुषों की है, तो ऑक्सफैम ने 2017 में एक अध्ययन किया और उसमें ये पाया कि हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें करीब 40 से 43% का इजाफा होता है। कई बार ये भी होता है कि जो जेंडर गैप है वो उसकी हम चर्चा ही नहीं करते हो, और ये कई बार मुझे ये व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं आता है कि एक औरत जब वो बहू रहती है तो उसे जो उसके सास उस पर अत्याचार करती है या उस पर बंदिश लगाती है तो उसे बहुत बुरा मानती है। लेकिन वही जब सास बन जाती है तो वो फिर अपनी बहू पर उसी प्रकार का
बंदिश से अत्याचार या उस पर हिंसा भी करती है। तो ये मुझे लगता है कि आप इस बात को महसूस ही नहीं करते कि ये जो एक प्रकार का काम इस तरह की जो बातें हो रही हैं वो उस बात में पुरुषों और महिलाओं के बीच का भेद छिपा हुआ है और उस भेद को खत्म करने की और उस खाई को पाटने की जरूरत है। कई बार हम ये भी महसूस करते हैं कि जो चूंकि ये खास के वैसे लोग जो थोड़े अपेक्षाकृत धनी हैं, थोड़े ज्यादा जिनके पास संसाधन है, औरतों और पुरुषों के बीच में कई चीजों में भेद नहीं रहा है। कृपया अपने आप को म्यूट करिए, म्यूट करिए। भेद नहीं रहा। अभी हाल में एक चर्चा में मैंने इस बात की चर्चा की कि जो फूड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आज भी काफी भेदभाव है। तो इस बात से सहमति नहीं हो पाई। पर और मुझे लगता है कि शायद जो हमारा उस तरह का वर्ग है वहाँ पे इस प्रकार का भेद हो भी नहीं, क्योंकि वो वैसा वर्ग है जहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हैं और पुरुष और महिला, लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव करने के लिए कोई ज़्यादा कारण भी नहीं है। लेकिन अगर हम ये थोड़ी देर के लिए उस तरह के माहौल से हट जाएं और वैसे माहौल में जाएं जहां पर संसाधनों की कमी है और वहां पर कास्ट जैसे फैक्टर्स भी घुस जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सामने आ जाती है। और पुरुषों और महिलाओं के बीच का जो फर्क है वो निर्णय की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगता है। और हमारी जितनी बहनें हैं खास के NRLM की, वो सब शायद इस तरह की माहौल में ही रह रही हैं जहाँ पर जो घर है, जो परिवार है, उसके पास उतने संसाधन नहीं है और औरतों और मर्दों के उनको संसाधनों का बंटवारा करना है और औरतों और मर्दों के बीच में, लड़कों और लड़कियों के बीच में जो भेद है वो भेद इस तरह के मामलों में, इस तरह के अवसरों पर अक्सर निर्णय की प्रक्रिया में एक कारण बनता है। तो उस बात को समझना बहुत जरूरी है। जो कार्य NRLM कर रहा है और खास के जो जेंडर विषयक जो उसके पहल हैं, उसके माध्यम से इस तरह की जो हमारे मन में भेदभाव है, अंतर है, उसको समझने में और उस पर निर्णय लेने में और उस कार्यक्रम बना के पंचायतों के माध्यम से और खुद समूहों की शक्ति के माध्यम से निर्णय लेने में मदद मिलेगी, उस संबंध में कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। NRLM ने कई सारे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और अलका ने कई मामलों पे चर्चा भी की है। मैं कुछ मामलों पे ही चर्चा करना चाहूँगा। एक तो जो महत्वपूर्ण ये है कि आज जितने महिलाएं हैं वो सिर्फ जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य बने हैं तो सिर्फ अपने आप को फाइनेंशियल इंक्लूजन के काम तक ही सीमित न रखें, बल्कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब आपने सेविंग्स की, बचत की और जरूरत के समय उस बचत से या बैंकों से ऋण लिया तो उस ऋण के से आपने घर के जो काम है, चाहे स्वास्थ्य विषयक जरूरत हो या शिक्षा विषयक जरूरत हो या और किसी इस प्रकार की जरूरत हो, उसको आपने पूरा किया। बल्कि जो आजीविका विषयक कार्य हैं उनमें
उन पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा काम बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे ये जानकर काफी दुख होता है कि जो बैंकों से हम ऋण दिलाने के लिए कोशिश करते हैं और इसमें भी हम पूरी तरह सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो ऋण मिलता भी है उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं होता। अर्थात हमारी बहनें जुड़ नहीं पा रही हैं, जो उत्पादक व्यवसाय हैं, चाहे कृषि का ही हो या पशुपालन का हो या दुकानदारी का हो या और भी किसी प्रकार के जो गैर कृषि रोजगार हैं, कार्य हैं, वो हो, तो उनके साथ उतनी संख्या में उतने गहनता से जुट नहीं पा रहे हैं। और जब तक हम जुटेंगे नहीं तब तक हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, और आर्थिक स्थिति मजबूत होने पे ही आपको समाज में और परिवार में वो दर्जा मिल पाएगा, वो अधिकार मिल पाएगा जिसकी आप हकदार हैं। मैं ये नहीं कहता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाने से आपको सारा अधिकार मिल जाएगा। हो सकता है उसके बाद भी आपको थोड़ी, चूंकि समाज में रूढ़ियां हैं, समाज आज भी अपने आप में भी आज भी पुरुषों की महत्ता है। अभी हाल में एक बहुत ही विचित्र वाकया हुआ था जब यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष हैं वो तुर्की गई थी, और तुर्की में तुर्की के राष्ट्रपति और उनकी बैठक होनी थी, और एक तीसरे सज्जन जो शायद उनके साथ आए थे वो उनके साथ बैठे और उनको बगल में थोड़ी दूर किसी सोफे पे बैठना पड़ा। तो ये नहीं जरूरी है कि आपको आर्थिक बढ़ोतरी के बाद, आर्थिक वृद्धि के बाद, आर्थिक समृद्धि के बाद आपको तुरंत बराबरी का दर्जा मिले, लेकिन वो आपको जरूर काफी आगे तक पहुंचाएगा। तो मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि, और एनआरएलएम के स्टाफ भी यहाँ पे हैं और हमारी स्वयं सहायता समूह या जितने विमेन कलेक्टिव्स हैं उनके लीडरशिप पोजीशन पे रही महिलाएं भी आज हैं, तो उन सबसे अनुरोध करूंगा कि हमें जो अपने रोजगार हैं उनमें काफी तेजी से भागीदारी करके, पूरी गहनता से भागीदारी करके एसआरएलएम के स्टाफ के साथ मिलके और बाकी जो भी अंतर विभागीय समन्वय है वो स्थापित करके हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार के साथ जोड़ें। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम हर एक महिला को एक अतिरिक्त रोजगार का साधन अवश्य मिले, तो उससे आपकी आर्थिक दृढ़ता और ज़्यादा बढ़ेगी। फिर भी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो लैंगिक असमानता है, भेद है, वो तुरंत खत्म नहीं होगा और उसको खत्म करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, और जिसके लिए एनआरएलएम निरंतर कार्य कर रहा है। इस कार्य के बारे में उन्होंने बताया कि आप जो हमारा एनआरएलएम के कैडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है, एनआरएलएम के स्टाफ की ट्रेनिंग हो रही है, जेंडर रिसोर्स सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जेंडर पॉइंट पर्सन्स नियुक्त किए जा रहे हैं, और उनके माध्यम से जो समाज में कठिनाइयाँ हैं, जो लिंग भेद के चलते दिक्कत आ रही हैं, उनको हम दूर करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोविड के समय में आपने जो आपका स्ट्रेंथ है वो दिखा है। हमने इस पीरियड में करीब 17 करोड़ मास्क आपने बनाए, आपने करीब 5,30,000 पीपीई किट बनाए, इसी प्रकार से करीब 5 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाए, 1,20,000 कम्युनिटी किचन्स चलाया, और आपने कोविड के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया, और इस प्रकार से कई सारे जो और जुड़े हुए मुद्दे थे डोमेस्टिक वायलेंस का, और उसमें आपने बड़ी भूमिका निभाई। ये एक जो महत्वपूर्ण
बात और मुझे कहनी है वो कि जो आपके यहाँ पर न्यूट्रिशन का मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पोषण का मुद्दा। और पोषण के मुद्दे पे आपको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। पोषण का एक बड़ा अंग कोशिश होती है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके माध्यम से हम पूरा कर सकें, और आंगनबाड़ी केंद्र का इस कारण से ठीक से संचालन होना बहुत जरूरी है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण जो पोषाहार है वो सही समय से जाए और पोषाहार का सही ढंग से वितरण हो। जो बच्चे जाते हैं उनको वहाँ पर जो वेट की मॉनिटरिंग या वजन की मॉनिटरिंग होती है वो हो। जो लोग बच्चे पिछड़ रहे हैं उनको, उनके परिवार को इस संबंध में काउंसलिंग मिले, उनको इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जाए कि घर में जो न्यूट्री गार्डन्स हैं उनको लगा के अपने घर में जो पोषण की सामग्रियां हैं उनको उनका ज़्यादा उत्पादन कर सके। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कैसे अपने घरों में जो बैकयार्ड पोल्ट्री, गोट्री या फिशरी इत्यादि के कार्य करके या हॉर्टिकल्चर वगैरह के काम करके अपने घर में इस प्रकार की सामग्रियों का ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं और उनका उत्पादन में, उनके उपभोग में हम वृद्धि कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम बाजार से खरीद के ही सामान लाएं तभी जाकर हमारा पोषण बढ़े, बल्कि आज के दिन अगर हम जो हमारे पोषण विषयक इंटरवेंशंस हैं और हमारी जो NRLM इस संबंध में काम कर रहा है उसको भी हम इस्तेमाल कर लें, उसको भी अमल में ले आए तो हम काफ़ी जो पोषण विषयक गैप है और जिसका ज़्यादा शिकार हमारी बहनों को होना पड़ता है उसमें हम सफलता पा सकते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि जो जेंडर संवाद है वो राज्यों में और खास के जो विभिन्न इससे जुड़े हुए कार्डर्स, लीडर्स, SHG लीडर्स, फेडरेशन लीडर्स और स्टाफ, उन सब उसमें सब लोग भागीदारी करें और उनकी जो अलग अलग समस्याएं हैं उनको सुलझाने की दिशा में प्रयास करें। जिस प्रकार से मुझे बताया गया है वो कि हर महीने एक अलग विषय लिया जाएगा और उस अलग विषय पर चर्चा की जाएगी और उस चर्चा के माध्यम से उस संबंध में क्या प्रैक्टिकल उपाय अपनाए जा सकते हैं उसके बारे में आपको निर्णय लेने में मदद पहुंचाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही व्यावहारिक उपाय है और इन व्यावहारिक उपायों के माध्यम से इस दिशा में हम काफ़ी अच्छा कार्य कर सकेंगे। एक बात मैं इस अवसर पर अवश्य कहना चाहता हूं कि जो हमारे जेंडर विषयक प्रयत्न हैं वो प्रयत्न आज भी जितने जगहों पे हम कर पा रहे हैं उनकी संख्या थोड़ी सीमित है और हम अगर कुल जितनी जगहों पर हम जा पाए हैं विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के या विभिन्न प्रकार के हायर टियर कलेक्टिव्स के रूप में उसके 5% तक ही जा पाए, तो हमें इस दिशा में भी अपने प्रयास तेज करने की जरूरत है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समूहों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के बीच में जा सकें। इस संबंध में एक व्यावहारिक उपाय ये हो सकता है कि जिन जगहों पर लिंग भेद असमानता थोड़ी ज़्यादा गहरी हो वहाँ पर हम अपने प्रयासों को ज़्यादा प्राथमिकता दें। साथ ही साथ हम वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास विभाग
उनके साथ भी समन्वय स्थापित करें ताकि उनकी शक्ति और हमारी शक्ति दोनों साथ मिलके काम कर सकें। हम पंचायतों में निर्णय की प्रक्रिया में ज़्यादा भागीदारी करें। जो गांव स्तर पर विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें ताकि जो गांव स्तर पर गरीबी के उन्मूलन में हम सफलता पाएं और गरीबी का उन्मूलन होने से खास के जिन बहनों तक हम पहुंचना चाहते हैं और जिनको हम अपने समूह में शामिल करते हैं उनकी स्थिति में सुधार आने से हमारा जो लिंग भेद है वो भी थोड़ा कम होगा और उनकी स्थिति बेहतर बनेगी। तो मैं इस अवसर पर पुनः आप सब लोगों को मुझे संबोधित करने का जो आपने अवसर प्रदान किया है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और यह भी अपेक्षा करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके इन प्रयासों से हमारी बहनों की हालत में, हमारी बेटियों की हालत में, माताओं की हालत में लिंग भेद कम करने की दिशा में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो लिंग भेद और अनपेड केयर वर्क और इन सब के मुद्दे आपने उठाए, ये हम इन्हें ध्यान में रखेंगे आगे की चर्चाओं में और पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन और पोषण अभियान के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स।